Hello students, welcome back to my lecture video, and in this lecture video we will be discussing the chapter 1 of the political science of your book, that is the Indian Constitution. Before moving on to this video, I would like to share you this link of a YouTube video which is made by me only. You have to visit this video, just copy this link and paste it in the YouTube section and you will get that video. So before watching this video, you should go and watch that video on YouTube. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन है क्या? आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं. कॉन्स्टिट्यूशन एक सेट ऑफ रूल्स है, रेगुलेशंस हैं, बट मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में आई वुड लाइक टू टेल यू दैट इफ यू नीड टू रन अ कंट्री और इफ यू नीड टू रन एनीथिंग, एनी इंस्टीट्यूशन, you have certain rules and regulation. For example, you are a school student. You have to come school on time. You have to be in a proper uniform. You have certain rules and regulations that you have to follow. If you don't follow them, you will be punished or there will be certain consequences. Similarly, if you want to govern a country, if you want to govern an institution, you need rules and regulation. So this constitution is a rules and regulations by which this country is governed. The Constitution of India is the longest written constitution in the world. It is a set of rules by which government rules our country. It is the supreme law of the land. It means सबसे बड़ा कानून है ये हमारी कंट्री का. It came into effect on 26 January 1950. 26 January 1950 को ये एक तरीके से इफेक्ट में आया. That's why we celebrate Republic Day. Our constitution is based on the principles of democracy, socialism, secularism. All these three words have been perfectly explained in the above linked. So please go and watch that video first. Now Dr. Bhimrao Ambedkar, he is a very known personality to you. Most of you have heard his name. He was the father of Indian Constitution because he was the chairman of the drafting committee. So the first question that arises, why does a country need a constitution? So basically in these next 10 points I will tell you why a country need a constitution. First of all, a constitution lays out certain ideals that forms the basis of the kind of country that we as citizens aspire to live in. इसका मतलब ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसी आइडियलिस्टिक सोसाइटी बनाता है, ऐसी रहने वाली जगह बनाता है जिसमें सिटीजन्स रहना चाहें. इट टेल्स अबाउट द फंडामेंटल नेचर ऑफ आवर सोसाइटी. ये हमें बताता है कि हमारी सोसाइटी कैसी है, किस तरीके की है. इट हेल्प्स serve as a set of rules and principles that all person in the country can agree upon. ये ऐसे rules और regulation सिद्धांत बनाता है जो हमें follow करने चाहिए और majority of the population believe in that and they follow it. ये हमें help करता है ऐसी government form करने के लिए जिसमें हम एक idealistic जो हमारा agreement कर सकें, ऐसी government बना सकें जो हमको जिस पे विश्वास हो और हम उनको चुन सकें. नेक्स्ट, व्हेन नेपाल वाज अ मोनार्की, देयर इज एन एग्जांपल इन दिस चैप्टर. नेपाल का एग्जांपल दिया गया है. इट वाज अ मोनार्की. मोनार्की का मतलब होता है ऐसी जगह जहां पे राजा रूल करता है पूरी कंट्री को. इट्स कॉल्ड अ मोनार्की एंड राजा को बोला जाता है मोनार्क. It reflected the final authority of the king. After transition of Nepal into a democracy, it started the process of writing new constitution for the country. तो वहां पर आप देखेंगे, मैं एक एग्जांपल दूंगा आपको आपकी बुक से ही. In the country of Nepal, the country has witnessed several people struggle for democracy. There was a people struggle in 1990 that established democracy that lasted for 12 years until 2002. तो 1990 में सबसे पहले वहां के लोगों ने आंदोलन किया और जो वहां का राजा था उसको कंट्री को डेमोक्रेसी बनाना पड़ा. डेमोक्रेसी वो कंट्री होती है जिसमें हम अपनी गवर्नमेंट खुद चुनते हैं. बट इन 2002 किंग ज्ञानेंद्र ऑफ नेपाल, उन्होंने क्या किया? माओविस्ट वो लोग होते हैं जो अगेंस्ट द गवर्नमेंट होते हैं. दे यूज वेपन फॉर देयर प्रोटेस्ट एंड कैन बी वॉयलेंट. तो उन्होंने कहा ज्ञानेंद्र जी ने कि माओविस्ट की वजह से हमारी कंट्री डेमोक्रेसी नहीं बन पाएगी, इसलिए उन्होंने सब अपनी आर्मी अपने हाथ में ले ली और फाइनली टुक ओवर एज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट इन फरवरी 2005. और 2002 में उन्होंने ये बहाना देकर 3 सालों के अंदर दोबारा जो राज्य जो पहले नेपाल के किंग के पास हुआ करता था 1990 तक, वो अपने पास रख लिया. बट इन नवंबर 2005 द माओइस्ट जॉइन अदर पॉलिटिकल पार्टीज टू साइन अ 12-point agreement. This agreement
signaled to the larger public an imminent return to democracy and peace. In 2006, this people's movement for democracy began gaining immense force. It repeatedly refused the small concessions that King made, and finally, April 2006, the King restored the third parliament and asked the political parties to form a government. In 2008, Nepal became a democracy after abolishing the monarchy. The photos above show scenes from the people's movement for democracy in 2006. So here you can see the photo. आप ये देखेंगे 2005 में उन्होंने ये कंट्री को दोबारा अपने हाथ में ले लिया था, बट जो मॉविस्ट लोग थे उन्होंने फिर पॉलिटिकल पार्टीज के साथ अपना हाथ मिला लिया और आगे चलकर डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश. So in 2008, Nepal became a democracy after abolishing the monarchy. The above photos show scenes from the people's movement for democracy in 2006. So in 2006, people protested and they wanted a democracy instead of monarchy, and they got the government. And right now, the Prime Minister of Nepal in 2020 is KP Oli. He became the Prime Minister in 2018. So in a democracy, leaders exercise their power responsibility on the behalf of the people. It defined country's political system. Basically, what I want to say that जो डेमोक्रेसी में है, जो लीडर्स होते हैं जिनको हम इलेक्ट करते हैं, वो लोगों के बिहाफ पे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं और वो लॉज बनाते हैं और हमारी कंट्री को गवर्न करते हैं. In democratic societies, the constitutions lay down the rules that guard against the misuse of authority by the political leaders. It lays certain important guidelines that govern decision-making processes. अब कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी लिखा हुआ है कि अगर हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स कुछ गलत करते हैं तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी, और उनको एक सर्टेन गाइडलाइंस फॉलो करनी होती है एक गवर्नमेंट के डिसीजन मेकिंग में. लाइक इफ यू वांट टू मेक अ लॉ, अगर उनको कोई नया लॉ बनाना है, दे हैव टू गो टू द पार्लियामेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा, and then they will be able to make laws. Constitution prevents tyranny and domination by the majority of the minority of a minority. It means constitution हमें ये राइट देता है कि जो minority है, minority मतलब कम संख्या में, majority मतलब ज़्यादा संख्या में. तो in class 10th you will learn about it in your political science, and in a smaller example I want to tell you that अगर एक कंट्री है वहाँ पे 80% लोग एक लैंग्वेज बोलते हैं और दूसरी 20% लोग कम लैंग्वेज बोलते हैं, तो जो 20% वाले हैं वो माइनॉरिटी होते हैं और मेजॉरिटी ज़्यादा परसेंट वाले. तो मेजॉरिटी बेसिकली ज़्यादा परसेंट वाले लोग होते हैं और माइनॉरिटी कम. तो मेजॉरिटी माइनॉरिटी के डोमिनेशन ना करे, एक तरीके से दबाए ना, उनको ऑपरेस ना करे, कॉन्स्टिट्यूशन ये भी प्रिवेंट करता है. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज द राइट टू इक्वालिटी टू ऑल सिटीजन्स, says that no citizen can be discriminated on the basis of religion, caste, gender, race, etc. So कोई भी इंसान डिस्क्रिमिनेट, भेदभाव नहीं होगा उसके साथ, और सारे सिटीजन इक्वल हैं. रिलीजन के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, कास्ट के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, जेंडर के आधार पर कोई नहीं होगा, रेस मतलब कि किस कलर का है वो, उस पर नहीं होगा. आफ्टर गोइंग थ्रू दोज पॉइंट्स दैट व्हाई अ कंट्री नीड्स अ डेमोक्रेसी, अब हम नए टॉपिक पे आते हैं, दैट इज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फीचर्स. अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके फीचर्स क्या हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे. द इंडियन मूवमेंट हैव बीन एक्टिव इन द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल फॉर सेवरल डेकेड्स, नॉट ईयर्स बट डेकेड्स. डेकेड का मतलब होता है 10 साल. तो इंडियन पॉलिटिशियंस, इंडियन पीपल, दे फॉट अगेंस्ट ब्रिटिशर्स फॉर आवर इंडिपेंडेंस. Nationalists devoted a great deal of time to imagining and planning what a free India would be like. And at that time, जब वो लोग स्ट्रगल कर रहे होंगे, वो सोच तो रहे होंगे कि जब आज़ाद हो जाएगा देश तो हम कैसे इंडिया चाहेंगे, क्या क्या चीज़ें करेंगे. द फाइनल डॉक्यूमेंट रिफ्लेक्ट्स अ रिस्पेक्ट फॉर मेंटेनिंग डाइवर्सिटी विद प्रिजर्विंग नेशनल यूनिटी अलॉन्ग विद इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी थ्रू सोशो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स. इस लाइन का बहुत इंपॉर्टेंस है. जब ये डॉक्यूमेंट बनाया गया, कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया, तो कुछ बातों का ध्यान रखा गया, जैसे डाइवर्सिटी ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन. अलग अलग रिलीजन के लोग रहते हैं, अलग अलग लैंग्वेज के लोग रहते हैं, अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं. सो देयर इज अ लॉट ऑफ डाइवर्सिटी. तो कॉन्स्टिट्यूशन में सबको रिस्पेक्ट करते हुए उस चीज़ का ध्यान रखा गया. प्रिजर्विंग नेशनल यूनिटी, अब इन सब का ध्यान रखते हुए भी एकता, कि सब लोग एक हों, सब लोग एक ब्रदरहुड की तरह रह सकें, फैमिली की तरह रह सकें, ये इसका ध्यान दिया गया. अलॉन्ग विद इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, और गरीबी हटाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट काम जो गरीब लोग हैं उनका एक तरीके से इकोनॉमिक रिफॉर्म करना. इकोनॉमिक रिफॉर्म करने का मतलब है उनको अच्छी जॉब्स देना, अच्छी एजुकेशन देना, ताकि वो पढ़ लिख कर अच्छी जॉब से अटेन कर सकें और वो अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव कर सकें.
फॉलोइंग आर द की फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये जो हमने बैकड्रॉप पढ़ा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो हम पढ़ रहे हैं प्रॉपर फीचर्स पढ़ रहे हैं। ये तो था कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में एक जिस्ट, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है। दीज आर द मेन 5 फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट वी आर गोइंग टू। सो द फर्स्ट की फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरलिज्म। इट रेफर्स टू एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन द कंट्री। अब इसका सीधा एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा। 6th क्लास में आपने पंचायती राज के बारे में पढ़ा था, पंचायत गवर्नमेंट्स के बारे में पढ़ा था, और 7th में आपने स्टेट गवर्नमेंट्स के बारे में पढ़ा था। और आप सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में तो जानते ही हो, जो पूरी कंट्री को चलाता है। सो देयर इज अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, लेवल ऑफ गवर्नमेंट, उसे हम कहते हैं फेडरलिज्म। सिटीजन्स आर गवर्नड बाय लॉज एंड पॉलिसीज मेड बाय ईच ऑफ दीज लेवल ऑफ गवर्नमेंट। चाहे वो यूनियन गवर्नमेंट हो जो कि पूरे इंडिया में है, जैसे बीजेपी गवर्नमेंट अभी पूरे इंडिया में है, एनडीए गवर्नमेंट बोलते हैं जिसे, फिर या स्टेट में हो, जिस स्टेट में आप रह रहे हैं उत्तराखंड, वहाँ पर भी बीजेपी की गवर्नमेंट है, पंजाब में कांग्रेस की गवर्नमेंट है, ऐसे ही बंगाल में, वेस्ट बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की गवर्नमेंट है, ममता बनर्जी लेड गवर्नमेंट इज देयर, एंड इन उड़ीसा नवीन पटनायक की गवर्नमेंट है, बीजू जनता दल जिसे कहते हैं। सो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट आपके पास अलग अलग लॉज बनाती है जिससे एक सिटीजन्स को वो गवर्न करते हैं। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीज यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज फॉर ऑल सिटीजन्स। सफरेज का मतलब होता है फ्रेंचाइज यानी कि वोट। यूनिवर्सल एडल्ट मतलब कि जो व्यक्ति 18 एंड 18 अबव है उसको एक वोट मिलेगा, और 1 वोट की 1 वैल्यू होगी, चाहे वो कितना गरीब क्यों ना हो, कितना अमीर क्यों ना हो। This means every citizen of the country, irrespective of her social background, has a direct role in electing their representatives. इसकी भी एक वीडियो का लिंक मैं आपसे शेयर करूंगा जो मैंने बनाई है, तो उसके द्वारा आपको डिफरेंस पता लग जाएगा एक एमएलए में और एमपी में, और कैसे इलेक्ट होते हैं। रिप्रेजेंटेटिव्स आर दस अकाउंटेबल टू द गवर्नमेंट इन द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट लोकसभा, राज्यसभा, और स्टेट में विधानसभा, विधान परिषद, जिसमें एमएलए और एमपी चुन के जाते हैं और आप लोग वोट देकर उनको चुनते हैं। थर्ड इज सेपरेशन ऑफ पावर्स, वेरी इंपॉर्टेंट। हमारी जो कंट्री है उसमें 3 हिस्सों में पावर्स डिवाइड करी गई है। लेजिस्लेचर जो कि पार्लियामेंट होती है जहां लॉज बनते हैं, एग्जीक्यूटिव जहां पर ये लॉज जो बनते हैं उनको एग्जीक्यूट किया जाता है, और एग्जीक्यूटिव में जितने भी हमारे ऑफिसर्स होते हैं, आईएएस ऑफिसर्स, पुलिस ऑफिसर्स, ऑल द ब्यूरोक्रेसी विच फॉलोज द रूल्स and implement them in the country. जुडिशरी जो इन दोनों से सेपरेट होती है वो है कोर्ट्स हमारी, जो जस्टिस करती हैं। Each organ acts as a check on another organs of the state and this ensures the balance of power between all three. अब अगर कुछ लेजिस्लेचर में कुछ गलत हुआ या एग्जीक्यूटिव में कुछ गलत हुआ तो जुडिशरी एकदम बोल सकती है, जो कोर्ट्स हैं वो एकदम बोल सकते हैं कि ये गलत हो रहा है। और जो कोर्ट्स हैं वो गलत बहुत कम होती हैं बिकॉज दे इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा है वो उसको बताती हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने, भारत के संविधान ने 6 राइट्स दिए हैं जो हमारे लिए हैं एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, और ये हमें प्रोटेक्ट करते हैं हमको बहुत सारी चीज़ों से। और वैसे तो 7 थे बट एक डिलीट कर दिया गया है, राइट टू प्रॉपर्टी। फर्स्ट इज राइट टू इक्वालिटी, मतलब हमें समान अधिकार मिला जाएगा। वी विल बी इक्वल बिफोर द लॉ, सबके लिए एक कानून होगा। राइट टू फ्रीडम, हमें आज़ादी है अपने आप हमारी बातें एक्सप्रेस करने की, हमारे थॉट प्रोसेस की। राइट अगेन एक्सप्लॉयटेशन, आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग काम करते हैं ऑफिस में, उनको ज़बरदस्ती परेशान किया जाता है, कुछ उनके साथ गलत किया जाता है तो वो उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, वी कैन फॉलो एनी रिलीजन इन इंडिया, बीट हिंदुइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, जुडाइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म एक्सेट्रा। Cultural and educational rights are given to each and every individual. Each and every individual's culture is respected. Sixth is constitutional remedies, right to constitution remedies. This is one of the most important right that we have. इस राइट का मतलब होता है कि अगर ऊपर दिए गए कोई भी 5 राइट्स का मिसयूज हो रहा है, मतलब कि कोई आपको परेशान कर रहा है या ये सब राइट आपको लेने से रोक रहा है, देन यू कैन गो टू कोर्ट एंड file a complaint that this right has been taken from me, and that's why it is called constitution remedies। मतलब कि ये जो
सारी प्रॉब्लम्स हैं, अगर कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए राइट्स में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसकी रेमेडी है, दवाई है, एक तरीके से इलाज है. In addition to fundamental rights, the Constitution has a section called Directive Principles of State Policies. ये state governments के लिए है खासकर. It ensure greater social economic reforms and to serve as guide to independent Indian states to institute laws and policies that help to reduce the poverty of the masses. It means कि जो state government है वो अपने लोगों के लिए उनको socially और economically stable करने के लिए laws बना सकती है. Fifth is secularism. This word was added to Indian Constitution and all about it is given in that video that I have shared the link with you. A secular state is one in which state does not officially promote any one religion or any state religion. So we don't have any state that has a particular religion. All the religions are equally respected and there is no particular religion which is official. The Constitution plays a crucial role in laying out the ideals that we would like all citizens of the country to adhere to, including the representatives that we elect to rule us. So similarly, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत अहम रोल प्ले करता है ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने के लिए जो आइडियलिस्टिक हों, जिससे कंट्री का सिटीजन एज वेल एज जिनको हम चुन के एमपी और एमएलए बनाते हैं वो भी फॉलो करें. हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत बार चेंज हो चुका है एंड वो धीरे धीरे सोसाइटी के साथ चेंज हो जाता है. Constitution has been changed over the years to reflect new concerns of the polity that involves a change in the fundamental nature of the country. So this country, as you know that there is a technological advancement, the thinking of the people is changing. So that's why we have to amend the constitution as per the country. So there were different amendments and the change to the constitution are called amendments, I would like to tell you. And this is all from this chapter. Thank you.